Good morning, dear students. Today we are starting chapter 1 of our book first of economics, Introductory Macroeconomics. Myself, Rakesh Kumar, welcomes you in my YouTube channel naming New Light Education. So, you must understand the given topic as a whole, it being explained to you. So, whatever is being explained, understand carefully and read it attentively in your book also. Okay, watch the whole video till end, and also you subscribe the YouTube channel to get the more updates. Okay, so in this book there are many topics. So first one is the national income and related aggregates. So book name is the Introductory Macroeconomics, class 12. Chapter 1. So national income and related aggregates. So what is the national income? In this chapter we will study what is the national income and what are the its related issues. Aggregates means related issues. Many types of separate concepts in this chapter are given. So first of all we must know that what is our economic system. In our economy, there are many types of work: primary sectors work, secondary sector work, and tertiary sectors. All the sectors work together, and as a whole, their economic system, economic earnings and plannings known as the macroeconomics. Here you can see the difference between both microeconomics and macroeconomics. Okay. In class 11th, you studied that. What is the microeconomics? Microeconomics studies the individual economic units. Individual economic units, for example, your household economic budgets, any firm's economic budgets, economic investment done by any industry, firm, etc. So we study in microeconomics individually the units, not for the whole country, not the state or districts, but in a particular firm we study microeconomics known as. But when we talk about the whole country's economy of the whole country, so how we explain it? Known as the macroeconomics. It studies the economy as a whole. Economy as a whole for the country. In any country. Here the word economy denotes the whole country's economic system. The country's economic system denotes by the macroeconomics. Okay. Earlier, J.M. Keynes, the British economist, who wrote the book. He wrote the book General Theory of Employment, Interest and Money. This is the name of the book, General Theory of Employment, Interest and Money. This book was published in 1936. In this book, he explained the systems of employment, how to generate the more employment and interest and the related money matters, how to control all these things. They contribute to increase the GDP of the country. So J.M. Keynes, the British economist, has done a lot to increase the economy more successful of any country of the world. Okay, students, here all about written in this board. You can take the screenshot and write down the main points if you like. Now students, अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या क्या है. What are the scope of macro economics? The wide range of studying the macroeconomics. तो first is the theory of national income. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है कि नेशनल इनकम की थ्योरी क्या है, क्या होती है हमारी नेशनल इनकम.
पूरे देश की जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम कही जाएगी वो, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में आता है, ठीक है। सेकेंड वन, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम क्या समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फील्ड में, कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए जाए। तो इफ वी जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, सो आवर इकोनॉमी बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, नॉट अ वीकर वंस। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, लोग ज्यादा अर्न करेंगे, गेन करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो आमदनी बढ़ेगी, और बैंक बैलेंस भी बढ़ाएंगे जब अपना वो, तो इनकम बढ़ेगी, तो देश की इनकम बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत जरूरी है, तो इसी से तो नेशनल इनकम हमारी लिंक है। देन थ्योरी ऑफ मनी। तो मनी के जो मैटर्स हैं, मनी, करेंसी प्रिंट करना, करेंसी को कंटेन रखना, और सर्कुलेशन ऑफ जो मनी होता है, मनी सर्कुलेशन चलता रहता है, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के फील्ड में आता है। अब मनी सर्कुलेशन क्या है कि थ्योरी ऑफ मनी। सपोज कीजिए कि आप किसी फर्म में जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी मिलती है, कि मुझे सैलरी मिलती है स्कूल में, तो मैं कुछ परचेज करता हूँ, कितनी शॉप्स पर मेरा पैसा चला जाता है, और वो शॉप्स ओनर्स का बैंक अकाउंट होता है, तो उनके पास भी बहुत जगह से पैसा आता है, बैंक में सबमिट हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा, वो बैंक में सबमिट हो जाता है, तो बैंक दोबारा इश्यू करती है उसी पैसे, तो एक मनी सर्कुलेट होता रहता है लोगों के बीच। तो थ्योरी ऑफ मनी पूरे देश की शामिल है यहाँ पर। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल कैसे डिसाइड किया जाता है, किस तरह हमारा प्राइस, किस चीज की प्राइस क्या होनी चाहिए, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे नेशनल इनकम का, इनकम इंक्रीज होती रहे और पब्लिक पर ज्यादा बर्डन ना हो, प्राइस लेवल मेंटेन रहना चाहिए। नेक्स्ट वन है थ्योरी ऑफ इनकम ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, सॉरी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरी शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रोथ रेट हमारा क्या है, कि नेशनल इनकम देश की जो हो रही है, और लास्ट ईयर क्या इनकम थी और इस साल कितनी है, तो एक ग्रोथ हम काउंट करते हैं कि कितने परसेंट ग्रोथ पर हम पहुंचे हैं, गवर्नमेंट टारगेट अचीव कर पाती है कि नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट का टारगेट 12% रहता है, लेकिन 6 और 7 के बीच हमेशा ग्रोथ रहती है, कि 12% ग्रोथ रेट रहेगा नेशनल इनकम का, जो ग्रोथ रेट होता है ऑल सेक्टर्स से गेन की गई इनकम, तो 12% टारगेट बनाया जाता है, लेकिन 6 to 7 से अबव अभी तक नहीं हुई है। नाउ क्लास, ये देखा हमने कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट सेक्शन में हम जानेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट वन, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, स्टडी क्यों जरूरी है इसकी, ये तो स्कोप थे। अब क्या क्या फायदे इससे होते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ, तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ modern economic system, modern economic system। तो करंटली जो भी इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है हमारे देश का, उस सिस्टम को समझने में और फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम पूरे देश की इकोनॉमिक सिस्टम को एक साथ स्टडी नहीं करते, गवर्नमेंट पूरा समरी ना निकाले कि किस साल कितना ग्रोथ रहा, कितनी अर्निंग रही पूरे देश की, ठीक है, तो उस सिस्टम को समझने में हेल्प कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इट हेल्प्स टू अचीव द गोल। तो क्या गोल अचीव करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। गोल ऑफ जीडीपी, जीडीपी और ग्रोथ लेवल को इंक्रीज करने में, अपना टारगेट बनाने में हेल्प करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं स्टूडेंट हम। थर्ड वन, तो एक थर्ड लेवल स्टूडेंट जो है, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल क्या है, अलग अलग गुड्स, जितने भी गुड्स हम डेली यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इंडस्ट्रीज और
एमएनसी जो है प्राइस डिसाइड करती हैं हर एक चीज़ का, उसको डिसाइड करने में हेल्प मिलती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से, और ये गवर्नमेंट परमिशन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो विचारता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? दे आर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस साइकिल्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस साइकिल्स, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई हैं। इन सबको सॉल्व हम कैसे करेंगे? जब तक हम मैक्रो लेवल पर स्टडी नहीं करेंगे पूरे देश की इकोनॉमी की। तो यही तो इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, डिटेल नॉलेज ऑफ फंक्शंस एट मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल का यहाँ वर्ड आ गया, देखिए कि नेशनल लेवल पर हम इसकी फंक्शंस की डिटेल नॉलेज गेन कर सकते हैं। डिटेल नॉलेज मिल जाती है पूरे देश की इकोनॉमी की, किस स्टेट में कितनी अर्निंग हुई, किस कौन आगे है, किस सेक्टर से हमें कितना गेन हो रहा है, कि प्राइमरी से, सेकेंडरी से, टर्शियरी से। तो होल एज ए नेशनल लेवल हम या मैक्रो लेवल कहें, इस पर हम मेंटेन करते हैं और स्टडी करते हैं। तो पूरा गवर्नमेंट को कंफर्म हो जाता है कि हम कितना गेन किया है, कितना और प्रोग्रेस करना बाकी है। ठीक है, तो अब ओवरऑल हमने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस बात पर जोर दे रहा है? इनकम, प्राइस लेवल, मनी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर जोर देता है। सो इसलिए इस स्टडी को दूसरा नेम भी दिया गया है, तो नेम एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। यानी कि इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नेम से भी जानते हैं, जैसा कि जेएम कैनीज ने बताया। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके आप मेन पॉइंट नोट कर सकते हैं और इस वीडियो को एक दो बार देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ओके।